Welcome to We Learn. Applications of Marketing Research, session number 2. Topics to be covered: assessing market potential, sales forecasting, steps in sales forecasting methods, barometric technique, lead lag series, indicators, economics models, correlations, customer profiling, consumer research, characteristics of good consumer research, sequence of steps in consumer research, product research, procedures in product research, new product research, price testing, assessing promotional effectiveness. Assessing marketing potential. Market potential has been defined as the maximum demand response possible for a given group of customers within a well-defined geographic area for a given product or service over a specified period of time under well-defined competitive and environmental conditions. The chain ratio method is something referred to as the top-down approach. It begins with the entire population of interest, then multiplies by a succession of factors to arrive at the smaller, more likely estimate of customers or sales. The factors used may be percentages, probabilities, or rupee amounts. The market build-up method, also referred to as the bottom-up approach, requires that we divide the market into identifiable segments, then make separate estimates of potential sales of each segment. The weighted factor index method is used primarily by the marketers of consumer goods to measure the relative market potential of a region or territory, that is, a potential as a percentage of the total potential of all such regions or territory. Sales forecasting. Sales forecasting can be explained as the prediction of the future sales of a particular product over a specific period of time based on past performance of the product, consumer spending patterns, inflation rates, marketing trends, unemployment and interest rates. सेल फोरकास्टिंग कहते हैं कि जब हम किसी फ्यूचर सेल को प्रिडिक्ट कर रहे हैं ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, किसी भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, किसी स्पेसिफिक पीरियड में बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस, मतलब उस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस पास्ट में कैसी रही, कंज्यूमर स्पेंडिंग पैटर्न्स उसका कैसे रहा, इन्फ्लेशन रेट्स या फिर मार्केटिंग ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं अभी, इंटरेस्ट रेट्स क्या है, इन सबको ध्यान में रखते हुए जो हम फ्यूचर सेल्स प्रिडिक्ट करते हैं उसको हम सेल्स फोरकास्टिंग बोलते हैं. Steps in sales forecasting. First is defining the objectives to be achieved, then dividing various products into homogeneous groups, then analyzing the importance of various factors to be studied for sales forecasting, selecting the method, collecting and analyzing the related information, drawing conclusions from the analysis made, implementing the decision taken, then reviewing or revising the sales forecasting from time to time. सेल्स फोरकास्टिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? सबसे पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है जिसको हमें अचीव करना है. उसके बाद हम बहुत सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट को डिवाइड कर देते हैं.
मतलब हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसको हमें सेल्स फोरकास्टिंग में पढ़ना होगा। देन हम मेथड सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कलेक्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं इंफॉर्मेशन को। उसके बाद हम जो एनालाइज कर रखा है हमने उसको एनालाइज इंफॉर्मेशन से हम कंक्लूजन निकालते हैं। देन हमें जो डिसीजन लिया है थ्रू एनालाइजिंग, उसके बाद हम अपने डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। देन आफ्टर रिव्यू करते हैं और रिवाइज करते हैं सेल्स फोरकास्टिंग टाइम टू टाइम। सेल्स फोरकास्टिंग मेथड्स, हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं सेल्स फोरकास्ट करने के। सबसे पहले है बैरोमीटर, देन इंडिकेटर्स, देन इकोनॉमिक मॉडल्स एंड देन कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बैरोमीटर के बारे में। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ साइक्लिकल वेरिएशन दैट इज prosperity decline, depression, recovery, the index number may be indicate the change in business activity। कोई भी साइक्लिकल वेरिएशन होता है जैसे कि डिप्रेशन, रिकवरी या फिर प्रॉस्पेरिटी डिक्लाइन, तो वो सब चेंज इंडिकेट करते हैं किसी बिजनेस एक्टिविटी में। Since it helps to make the sales forecast for future conditions of business and is called the business parameters, क्योंकि ये सब चीज़ें सेल्स फोरकास्ट में हेल्प करती है, इसलिए इन सब चीज़ों को हमने बिजनेस पैरामीटर्स का नाम दिया हुआ है। If the indices of productions, prices, price trade, bank clearance, etc. are expressed typically, the curve thus obtained shows a trend of long period and seasonable movements। अगर हम प्रोडक्शन या प्राइस ट्रेड या फिर बैंक क्लियरेंस का इंडिसेस देखें तो हमें पता चलेगा कि वो एक लॉन्ग पीरियड और सीजनल मूवमेंट का एक कर्व शो कर रहा है। दीज इंडेक्स नंबर मे बी कंबाइंड टुगेदर इनटू अ कंपोजिट इंडेक्स, और ये जो इंडेक्स नंबर है ये कंबाइन होके एक कंपोजिट इंडेक्स बनाते हैं। नाउ दिस कंपोजिट और जनरल इंडेक्स would reveal the future conditions of trade and industry, that is it will be an indicator। Now ये जो हमारा composite index है ये हमें बताएगा कि हमारा future condition क्या होना है ट्रेड में या किसी इंडस्ट्री में, क्योंकि हमें future condition को indicate कर रहा है, इसलिए हम इसलिए ये indicators भी कहलाते हैं। If the barometers show a fair chance of rising or improvement, then this will lead to an increase in the national income and expenditure after a lag of some time। अगर बैरोमीटर शो करते हैं एक fair chance of rising और improvement का, तब this will lead to an increase in national income, तो हमारा जो national income होगा उसके वजह से increase हो जाएगा और इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्रीज हो जाएंगे कुछ टाइम के बाद। मतलब ये शो कर रहा है, हमें हेल्प कर रहा है सेल्स फोरकास्ट में कि आगे फ्यूचर क्या होगा हमारी सेल्स का। देन लीड लैग सीरीज, इन दिस सीरीज द लैप्स ऑफ टाइम इन बिटवीन द मूवमेंट ऑफ वन सर्विस that of general business conditions is determined। इस सीरीज में जो टाइम का लैप्स हुआ है between the movement of one service and that of general business is determined। Again, the turning point also can be determined in advance, which will be a good aid for business affairs।
इस केस में जो टर्निंग पॉइंट्स है वो हमें पहले ही पता चल जाते हैं, इसलिए ये जो है एक गुड एड है बिजनेस अफेयर में। From the graph it is seen that the crest point of leading series is higher than that of coincident series, while the same for the lagging series is still later. National product, general consumption, index of wholesale price, index of consumer prices, stock and share prices, volume of bank deposit, volume of agricultural product, these quantities are converted into relatives having a certain base period, then the relatives are weighted. National product, general consumption, index of wholesale prices, ये सारे जो हैं ये क्वालिटीज़ हैं, these are the qualities, ये सारी क्वालिटीज़ है जो कि कन्वर्ट होती है रिलेटिव में, जिसका एक सर्टेन बेस पीरियड होता है। The average is calculated which is the parameter, और उसके बाद एवरेज कैलकुलेट होता है जो कि पैरामीटर है। These parameters guide industrialist and businessman to take future decision, और ये जो पैरामीटर है ये इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन को फ्यूचर डिसीजन लेने में हेल्प करता है। Now indicators. From the Office of National Bureau of Economic Researcher NBER of USA, indicators like lead indicator, coincident indicator and lag indicator have been selected. इस indicators में co-indicator, lag indicator and economic models select हैं. Let us read it one by one. First is coincident indicator. These indicators move together either positively or negatively. No lead time or lag time is involved. इस indicators में जो variables हैं वो together वो साथ के साथ मूव करते हैं, या अगर उसको नेगेटिव में जाना है या पॉजिटिव में जाना है, दोनों ही साथ के साथ मूव करते हैं। इसमें कोई लीड टाइम नहीं होता और ना ही कोई लैग टाइम होता है। इसका एक एग्जाम्पल ले सकते हैं हम इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइसेस या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नाउ लैग टाइम्स, आफ्टर अ टाइम लैग दीज इंडिकेटर्स रिएक्ट। कुछ टाइम लैग के बाद ये इंडिकेटर्स रिएक्ट करते हैं, जैसे कि पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स एंड प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स एटसेट्रा। इकोनॉमिक मॉडल्स, it is possible to express economic activity by mathematical equations. ये possible हो सकता है कि कोई economic activity है उसको हमें mathematical equation में express करना है। Such analytical expression is known as the econometric model that states in detail and in quantitative terms the way in which the various aspects of economic are interpreted. ये जो एनालिटिकल एक्सप्रेशंस हैं इसको हम इकोनोमेट्रिक मॉडल बोलते हैं, जो कि हमें बताते हैं डिटेल में और क्वांटिटेटिव टर्म्स में द वे इन विच द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी आर इंटरलिंक्ड। मतलब कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं इकोनॉमी में जो इंटर रिलेटेड हैं, उनको क्वांटिटेटिव टर्म्स में हमें ये बताते हैं। नेक्स्ट इज कोरिलेशंस। Correlations, measures of correlation shows a reliable prediction of variable. Correlation के measurements हमें एक reliable prediction देते हैं variables का। Measurement of correlation shows the reliable prediction of variables. The effect of correlation is to reduce the range of uncertainty The effect of correlation is to reduce the range of uncertainty of our prediction. The prediction based on correlation analysis will be more reliable and near to unity. जो हम prediction करते हैं through correlation method, वो analysis बहुत ज़्यादा reliable होते हैं और unity से बहुत near by होते हैं।
जो इफ़ेक्ट है कोरिलेशन का वो रिड्यूस कर देता है अनसर्टनिटी को, हमारे प्रेडिक्शन में जो भी अनसर्टनिटी होती है उसको रिड्यूस कर देता है। नाउ कंज्यूमर प्रोफाइलिंग। Consumer profiling is a way to create a portrait of your customers to help you make design decisions concerning your service. Customer profiling एक तरीका है एक कंज्यूमर के पोर्ट्रेट को बनाने का, जिससे कि आपको हेल्प होगी कोई सर्विस डिज़ाइन करने में। अगर आप कोई भी सर्विस किसी कस्टमर को देना चाहते हो तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके कस्टमर्स कैसे हैं। पहले आपको उनका पोर्ट्रेट बनाना होगा और उसके बाद आप अपने डिसीजंस को डिज़ाइन कर सकते हो उनके हिसाब से। योर कस्टमर्स आर ब्रोकन डाउन इनटू ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स शेयरिंग सिमिलर गोल्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। आपके जो कस्टमर्स हैं आप उन कस्टमर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हो, ग्रुप्स में ब्रोक कर सकते हो, जैसे कि कुछ कस्टमर्स जिनका सिमिलर गोल या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके हिसाब से। कस्टमर प्रोफाइलिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर डिटरमाइनिंग वेयर एंड हाउ टू कंडक्ट योर बिजनेस। कस्टमर प्रोफाइलिंग एक बहुत इफ़ेक्टिव टूल है ये समझने का, ये डिटरमाइन करने का कि आपके कस्टमर आपको बिजनेस कहाँ और कैसे कंडक्ट करना है। नाउ कंज्यूमर रिसर्च। कंज्यूमर रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ मार्केट रिसर्च इन विच द प्रेफरेंसेस, motivations and buying behavior of the targeted customer are identified through direct observation, mail, surveys, telephone or face-to-face interviews and from published sources. Consumer research एक पार्ट है मार्केटिंग रिसर्च का, जहाँ पे प्रेफरेंसेस, मोटिवेशन और बाइंग बिहेवियर को, जो कस्टमर का प्रेफरेंस, मोटिवेशन और बाइंग बिहेवियर है उनको पहले आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या मेल सर्वे या टेलीफोन और फेस टू फेस इंटरव्यू या किसी और पब्लिश्ड सोर्स के ज़रिए। इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, एनालाइजिंग एंड मार्केटिंग मिक्स and understanding the factors which influence the decision making. ये कंज्यूमर रिसर्च हमें हेल्प करता है कि हम अपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ को बना सके, उसको एनालाइज कर सके, मार्केटिंग मिक्स को एनालाइज कर सके और अंडरस्टैंड कर सके कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं। Characteristics of good consumer research। कौन कौन से characteristics हैं जो good consumer research में पाए जाते हैं। First is scientific method। Effective consumer research uses the principle of the scientific method, careful observation, formulation of hypothesis, prediction and testing of consumer behavior। जो इफ़ेक्टिव कंज्यूमर रिसर्च होता है वो साइंटिफिक मेथड के प्रिंसिपल को यूज़ करता है, जो कि कहता है कि हमें ऑब्जर्वेशन केयरफुल करनी चाहिए, हाइपोथेसिस अगर हम बना रहे हैं तो उसको सही से बनाना चाहिए और कंज्यूमर के बिहेवियर को टेस्ट करते रहना चाहिए। रिसर्च क्रिएटिविटी। एट इट्स बेस्ट कंज्यूमर रिसर्च develops innovative way to solve a problem related to consumer satisfaction। एक कंज्यूमर रिसर्च कुछ इस तरह से डेवलप होना चाहिए कि वो अपने कंज्यूमर की प्रॉब्लम को समझे, उसको सॉल्व करे और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करे। मल्टीपल मेथड। competent researchers can adopt various methods for solving a problem। जो कॉम्पिटेंट रिसर्चर्स होते हैं वो बहुत सारे मेथड्स को अडॉप्ट कर
सकते हैं ताकि वो कंज्यूमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। दे आर रिकॉग्नाइज्ड the desirability of gathering information from multiple resources to give greater confidence। वो रिकॉग्नाइज करते हैं और इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, मतलब इकट्ठा करते हैं बहुत सारे सोर्सेस से, जिससे कि उनको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, नाउ आई कैन रिकॉग्नाइज द प्रॉब्लम एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज वेल। The next is value and cost of information. Competent researchers show concern for estimating the value of information against its cost. जो competitive researchers होते हैं शो करते हैं शो करते हैं अपना कंसर्न टू द वैल्यू ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब वो कॉस्ट पे इतना ध्यान ना देके जो वैल्यू है इंफॉर्मेशन की उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। कॉस्ट हेल्प द रिसर्च डिपार्टमेंट डिटरमाइन विच रिसर्च प्रोजेक्ट टू कंडक्ट, विच रिसर्च डिज़ाइन टू यूज एंड वेदर टू गैदर मोर इंफॉर्मेशन आफ्टर द इनिशियल रिजल्ट्स आर अवेलेबल। कॉस्ट हमारी हेल्प करता है, रिसर्च डिपार्टमेंट में हेल्प करता है कि वो देख सके कि कौन सा रिसर्च प्रोजेक्ट हैंडल करना है, क्या रिसर्च के डिज़ाइन होने चाहिए, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, क्या और ज़रूरत है इंफॉर्मेशन लेने की, ये सब। रिसर्च कॉस्ट आर टिपिकली ईजी टू क्वान्टिफाई व्हाइल द वैल्यू इज़ हार्डर टू एंटिसिपेट। जो रिसर्च कॉस्ट होती है हम उसको ईजिली क्वान्टिफाई कर सकते हैं, ईजिली हम उसको किसी भी नंबर में या फिर क्वांटिटी में लिख सकते हैं, लेकिन जो वैल्यू होती है उसको एंटिसिपेट करना हार्ड हो जाता है। द वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ द रिसर्च फाइंडिंग्स एंड मैनेजमेंट्स विलिंग टू एक्सेप्ट एंड एक्ट ऑन इट्स फाइंडिंग। लेकिन वैल्यू डिपेंड करती है कि हमारा जो रिसर्च फाइंडिंग है वो कितना रिलायबल है और कितना वैलिड है, और मैनेजमेंट कितना विलिंग है उस फाइंडिंग को एक्सेप्ट करने में। तो इस केस में जो कॉम्पिटेंट रिसर्चर होता है वो वैल्यू पे ज़्यादा ध्यान देता है, कॉस्ट पे कम ध्यान देता है। नाउ एथिकल मार्केटिंग, मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर रिसर्च बेनिफिट्स बोथ द स्पॉन्सरिंग कंपनी एंड इट्स कंज्यूमर्स। बहुत सारे कंज्यूमर रिसर्च स्पॉन्सरिंग कंपनी को और कंज्यूमर्स को, दोनों को ही बेनिफिट पहुंचाते हैं। थ्रू कंज्यूमर रिसर्च कंपनीज लर्न मोर अबाउट द कंज्यूमर्स नीड्स एंड आर एबल टू सप्लाई मोर सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो कंपनीज हैं, स्पॉन्सरिंग कंपनी है, कंज्यूमर रिसर्च से स्पॉन्सरिंग कंपनी को पता चल जाता है कि उनके कंज्यूमर्स की नीड क्या है और उन नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो प्रोडक्ट्स चाहिए कंज्यूमर्स को वो ही सप्लाई करती है। However, the misuse of marketing research can also harm the consumer। लेकिन अगर हम मार्केटिंग रिसर्च का गलत उपयोग करते हैं तो वो हमारे कंज्यूमर्स को हार्म भी पहुंचा सकती है। Sequence of steps in consumer research। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो कंज्यूमर रिसर्च में आते हैं? फर्स्ट इज फॉर्मुलेट कंज्यूमर रिसर्च प्रॉब्लम, सेकेंड लिस्ट आउट रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, थर्ड डिटरमाइन रिसर्च डिजाइन, फोर्थ design data collection method and forms, fifth analysis and interpret data, and the last one is prepare the research report। पहला है कि हम अपने कंज्यूमर रिसर्च की प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें, उसके बाद हम अपने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव की लिस्ट बनाएं, थर्ड रिसर्च डिज़ाइन बनाएं, फोर्थ कुछ डेटा कलेक्ट करें,
फिफ्थ, एनालाइज करे उस डेटा को और इंटरप्रेट करे। एंड द लास्ट इज प्रिपेयर द रिसर्च रिपोर्ट, एक रिसर्च रिपोर्ट बनाएं। नाउ प्रोडक्ट रिसर्च। Product research is the development of a product line which meets the needs of a certain group of consumers. Product research होता है जब हम किसी प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करें, वो प्रोडक्ट लाइन जो हमारे ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हैं उनकी नीड्स को फुलफिल करें। कोई कंपनी अगर अपने कंज्यूमर्स की नीड को फुलफिल करने के लिए अपनी प्रोडक्ट लाइन को डेवलप करती है तो उसको हम प्रोडक्ट रिसर्च बोलते हैं। द एसेंस ऑफ एनी फर्म्स न्यू प्रोडक्ट पॉलिसी is the identification of those product opportunities which should generate the greatest return on investment in relation to risk involved. कोई भी फर्म को चाहिए कि अपनी प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करे और उन प्रोडक्ट्स को एडअप करें जिससे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। नाउ प्रोसीजर्स एंड प्रोडक्ट रिसर्च। कौन कौन से प्रोसीजर्स हैं जो प्रोडक्ट रिसर्च में इन्वॉल्व हैं? फर्स्ट इज डेवलपिंग एन ओवरऑल प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी बेस्ड ऑन मार्केट नीड्स, industry structure and corporate resources. Second, developing a flow of new product ideas from a variety of sources. Third, developing procedures to screen on a preliminary basis. Next, developing procedures for final reasoning. Next, developing product specifications with regard to optimum product. The next is product testing, then test marketing, then commercialization, in which we have divided the commercialization into three, that is product life cycle, package testing and display. Let us read it one by one. First is developing a product strategy. Consumption systems are a useful concept in helping to develop a meaningful product strategy. Products are used with other product, labor, machines and hands from a part of a system. कोई भी प्रोडक्ट को बनाने से पहले उसकी स्ट्रैटेजी डेवलप करनी होती है ताकि हम प्रोडक्ट को सही तरह से बना सकें। उसके लिए सबसे पहला प्रोसीजर होता है डेवलपिंग अ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी। प्रोडक्ट्स आर यूज विद अदर प्रोडक्ट्स, मतलब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ यूज होते हैं। इनोवेशंस थ्रू इंटीग्रेशन ऑफ सिस्टम इज अ कॉमन मेजर। अ प्रोडक्ट शुड fulfill these needs, so opportunities of new products should be exploited because of change in the environment. The firm's product strategy is terms of sales volume, type and number of competitors, technical opportunities, patent opportunity, raw material, production load, similarity to major business effects on present product and so forth. इस प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी में हम इन्वॉल्व कर रहे हैं सेल्स वॉल्यूम, टाइप ऑफ नंबर ऑफ कंपटीटर्स, टेक्निकल अपॉर्चुनिटीज़ को, रॉ मटेरियल को, मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के फिर एक फर्म कोई स्ट्रैटेजी बनाती है प्रोडक्ट के लिए। देन आफ्टर डेवलपिंग ऑफ न्यू आइडियाज़, उसके बाद कंपनी
प्रोडक्ट की न्यू आइडिया बनाती है। The value of each will differ substantially from company to company. Suggestions and complaints from customer are major source. कोई भी अगर कस्टमर आपके प्रोडक्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो हाँ, कोई कंपनी क्या देखती है कि कस्टमर को क्या चाहिए, क्या कस्टमर सजेस्ट करता है और क्या उसकी कंप्लेन है, उसके हिसाब से ही किसी प्रोडक्ट को सुधारा जाता है या फिर नए प्रोडक्ट लाए जाते हैं। Third is preliminary screening of product ideas. It is necessary to have a preliminary screening device which is fairly routine and regular. The first step is usually to determine whether the product idea meets the criteria stated in the company strategy statement. फिर हम देखते हैं कि क्या प्रोडक्ट की जो आइडिया है, क्योंकि एक कंपनी के पास बहुत सारे आइडियाज़ हो जाते हैं, उनमें से किसी एक आइडिया को लेना होगा कि जो कि कस्टमर के नीड्स को फुलफ़िल कर सके। तो वही स्क्रीनिंग द आइडिया, वो अपने आइडियाज़ जो है, बहुत सारे आइडियाज़ में से कुछ आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं। देन आफ्टर फाइनल स्क्रीनिंग, दोज प्रोडक्ट्स विच सर्व द प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग आर रेडी फॉर फाइनल चेक। और वो जो आइडियाज़ है, अ न्यू आइडिया मे नॉट गो थ्रू द इंटायर फाइनल स्क्रीनिंग प्रोसेस इफ इट इज़ ऑब्वियस दैट द प्रोडक्ट वुड नेवर प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसके बाद उस प्रोडक्ट की फाइनल स्क्रीनिंग होती है, जो हमने 10 में से 5 चूज़ किए थे आइडियाज़, फिर 5 में से 1 या 2 फाइनल स्क्रीनिंग में चूज़ होते हैं। नाउ देन डेवलपिंग प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन। The set of product attributes which are optimal for market segments to which the product may appeal must be determined. क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए एक प्रोडक्ट में, क्या कंज्यूमर्स चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं। कोई भी प्रोडक्ट डेवलप होता है उनकी नीड्स को देख के होता है। Then after product testing, it is the way of determining whether the potential customers have understood the idea behind the product and how they evaluate the product attributes. On the basis of up-to-date information, the marketer is now in a position to undertake a research which provides him insights into whether he has been successful in developing the desired product. उसके बाद प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, क्या वो अप टू डेट है, क्या जो मार्केट में इंफॉर्मेशन है वो जो मार्केट में चाहिए क्या वो इसमें है, जो मार्केटर के पास अप टू डेट इंफॉर्मेशन है क्या वो इस प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, उसके बाद टेस्ट मार्केटिंग। It is the procedure by which a company attempts to launch a new product marketing plan by introducing it on a miniature basis before committing the product to the entire market. उसके बाद कुछ सैम्पल्स प्रोडक्ट के मार्केट के अंदर दिए जाते हैं और फाइनली लॉन्च हो जाता है वो प्रोडक्ट। कमर्शलाइजेशन टेस्ट मार्केटिंग में सिर्फ कुछ सैम्पल्स मार्केट में देखे जाते हैं किसी छोटे से एरिया में कि कितना मार्केट हमारे प्रोडक्ट को अडॉप्ट कर सकती है। देन आफ्टर कमर्शलाइजेशन, कमर्शलाइजेशन में 3 पॉइंट्स आते हैं। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट passes through a life cycle comprising of introductory period, growth stage, maturity and decline। देखो प्रोडक्ट लाइन साइकिल में 4 स्टेजेस होती है, इंट्रोडक्टरी पीरियड, growth stage, maturity और फिर decline। Each of these stages require a different set of strategies if the firm is cope successfully with the problem of particular stage। और हर एक स्टेज में अलग अलग स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ती है फर्म को उस प्रोडक्ट को चलाने के लिए। पैकेज टेस्टिंग, पैकेजिंग हैज़ बिकम इंक्रीजिंगली इम्पॉर्टेंट एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन सेल्फ सर्विस। पैकेजिंग मटेरियल्स, डिज़ाइन, कलर, साइज, इलस्ट्रेशन, brand name, associated symbol, copy and layout may affect to a very considerable extent a potential buyer's
परसेप्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। पैकेज जो भी हम जिसमें हम पैक करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, उसको हम पैकिंग बोलेंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी प्रोडक्ट के लिए पैकेज का साइज़ या कलर या ब्रांड नेम या कोई भी सिंबल, इन सब को लेके एक परसेप्शन बन जाती है एक प्रोडक्ट के लिए। देन आफ्टर डिस्प्ले, advertising and communication must be directed towards stimulating favorable trade opinion and feeling about a company, as well as favorable customer attitude towards product, price, quality, delivery, sales and technical services। जो एडवर्टाइजमेंट और कम्युनिकेशन होता है वो डायरेक्ट स्टिमुलेट करता है, वो डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है कस्टमर्स को। Concept delivery from the clinical research and finding of sociologists, psychologists, and anthropologists may be used to determine why people buy particular product or services and lead to advertising which appeal to needs, wants, and desire। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट, सोशलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट देखते हैं कि क्यों एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है एक पर्टिकुलर पीपल को, तो उनकी नीड्स और डिज़ायर को देख के वो एडवर्टीज़मेंट को डिज़ाइन करते हैं और इंफॉर्मेशन पास करते हैं कंज्यूमर को। नाउ न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। While analyzing a new product, you should always consider, जब आप कोई भी नए प्रोडक्ट को एनालाइज कर रहे हो तो आपको कंसिडर करना चाहिए मार्केटिंग, प्रोडक्ट लाइफ, रिक्वायर्ड इनपुट, फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल अप्रेजल। मार्केटिंग को एनालाइज करना चाहिए क्योंकि it includes a study of all aspects of the relationship of product with its market। क्योंकि ये इंक्लूड करता है एक स्टडी जो कि होती है बिटवीन प्रोडक्ट और मार्केट, जो मार्केट और प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशनशिप की स्टडी होती है, वो मार्केटिंग के अंदर आती है। प्रोडक्ट लाइफ, all the product lines have a definite life and it is important to some idea about the lifespan of a new product। हर एक प्रोडक्ट की 4 स्टेजेस बताई है, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। हर एक लाइफ में, हर एक प्रोडक्ट की लाइफ में कुछ ना कुछ नई स्ट्रैटेजीज कंपनीज अडॉप्ट करती है, तो द इफ़ेक्टिव लाइफ ऑफ अ प्रोडक्ट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। और जो इफ़ेक्टिव लाइफ है वो ही हमें कंसिडर करनी चाहिए। प्रोडक्ट लाइफ cycle are not easy to estimate and are largely depend on the forecast our own judgment। जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है उसको एस्टिमेट करना इजी टास्क नहीं है, ये डिपेंड करता है कि हम कैसे फोरकास्ट कर रहे हैं अपने जजमेंट से। देन आफ्टर रिक्वायर्ड इनपुट, द फॉलोइंग इनपुट रिक्वायरमेंट्स आर फेल्ट इन केस ऑफ न्यू प्रोडक्ट रिसर्च। मतलब ये कुछ इनपुट रिक्वायरमेंट्स है जो कि न्यू प्रोडक्ट रिसर्च में चाहिए होती है, जैसे कि फर्स्ट इज स्टाफ रिक्वायरमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, sales and market forecast for the purpose, may have to consult personal department, estimate of capital and plant requirement, raw material and components required for the product। मतलब कि कौन कौन से स्टाफ चाहिए न्यू प्रोडक्ट के लिए, सेल और मार्केट फोरकास्ट। थर्ड इज कि पर्सनल डिपार्टमेंट चाहिए होगा, देन एस्टिमेट करना होगा हमें कैपिटल और प्लांट रिक्वायरमेंट को, देन आफ्टर कौन कौन से रॉ मटेरियल और कंपोनेंट्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट आता है फ्यूचर प्लानिंग।
फ्यूचर प्लानिंग एक रिसर्चर के लिए बहुत ज़रूरी है। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमें कंसिडर करने की आवश्यकता है। फर्स्ट है कंपनी की ग्रोथ, सेकंड है कैपेबिलिटी विद द कंपनीज ग्रोथ इंटेंशन, थर्ड है इफेक्ट ऑफ कंपटीशन, इफेक्ट ऑन कॉम्पिटिटर्स एंड प्लान एंड पॉलिसी, मतलब कितना इफेक्ट होगा कॉम्पिटिटर के प्लान पे और पॉलिसी पे, एंड फोर्थ है फ्यूचर ऑफ कंज्यूमर एंड एंड यूज़र, मतलब फ्यूचर कंज्यूमर का और एंड यूज़र का। देन द लास्ट इज फाइनेंशियल अप्रेजल। फाइनेंशियल अप्रेजल ज़रूरी है। इट इज़ अ नेसेसरी टू मेक द फाइनेंशियल अप्रेजल व्हाइल डेवलपिंग एंड लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। जब हम लॉन्च कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं किसी प्रोडक्ट को, तो फाइनेंशियल अप्रेजल होना बहुत ज़रूरी है। दीज आर 3 वाइडली यूज मेथड, 3 मेथड्स होते हैं, पेबैक, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिस्काउंटेड कैश एंड फ्लो। 3 मेथड्स बता रखे हैं फाइनेंशियल इस अप्रेजल में। पहला है पेबैक मेथड, फिर है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एंड जो हमारा थर्ड है वो है डिस्काउंटेड कैश फ्लो। Then price testing. Pricing testing reveals the quantity demanded at various level of price. Price testing बताता है कि कौन कौन से लेवल है प्राइसेस के जिसमें क्वांटिटी डिमांड की जाती है। It gives an idea about the behavior of competitors, market share, dealers' attitude, etc. ये हमें एक आइडिया देता है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स, मार्केट शेयर और डीलर्स कैसे बिहेव करेंगे, उनका एटीट्यूड क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस आर एग्जामिन्ड थॉरली। द एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन, return on investment, channel of distribution and government control are the various factors that affect the determination of prices. कितना कंपटीशन है, कितना रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट पे, क्या क्या चैनल्स है डिस्ट्रीब्यूशन के, और गवर्नमेंट का कितना कंट्रोल है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी प्राइस डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। The next is assessing promotional effectiveness. Creating effective promotion with customers helps in attracting and maintaining prospective and present customers. Effective promotion help करता है हमारी कि हमारे जो प्रेजेंट कस्टमर्स हैं उनको हम रिटेन कर सकें, अपने पास रख सकें और अट्रैक्ट कर सके और ज़्यादा कस्टमर्स को। प्रमोशनल टैक्टिक्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एन एग्जैक्ट साइंस। प्रमोशनल टैक्टिक्स एग्जैक्टली साइंस नहीं कह सकते हम इसको, बिकॉज ऑफ दिस देयर इज़ नो वे फॉर समवन टू मेजर एग्जैक्टली द अचीवमेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन। बिकॉज ऑफ दिस, इसी वजह से कोई भी एडवर्टीज़मेंट कैंपेन करके ये नहीं बता सकता कि मैंने एग्जैक्टली कितना अचीव किया है। टू टेक अ सिंपल एग्जांपल, द इन्वेस्टमेंट इन एन एडवर्टाइजिंग कैंपेन इज़ ईजी टू एस्टैब्लिश, बट कैलकुलेटिंग द रिजल्ट इज़ imprecise because so many other factors impact sales. जैसे कि अगर हम किसी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा वो कैंपेन अच्छा हो गया और इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, लेकिन हम उसको एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं मेजर कर सकते। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इतनी सेल्स बढ़ी है बिकॉज ऑफ आर एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारी सेल्स को इफ़ेक्ट करते हैं। Do it yourself. First is, what are the importance of consumer research? Second, what do you mean by test marketing? Thank you.